اور جناب پاکستان کے آسٹریلیا کے خلاف تاریخی فتح پر شہری کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ ٹیم نے آسٹریلیا نو 22 سال دے بعد ہرایا ہے اور پاکستان نے جیت کی ہے۔ اسی اس گل دے اوتے پاکستان ٹیم نو مبارکباد پیش کرنی ہے۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ٹیم 22 سال بعد آسٹریلیا کے ہوم گراؤنڈ میں شکست دینے میں کامیاب ہوئی ہے۔ پاکستان میچ جیت چکا ہے آسٹریلیا سے 22 سال بعد، بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں اور انشاءاللہ پاکستان نیکسٹ بھی جیتے گا اور خوشی کا موقع ملے گا۔ پاکستان میچ جیت چکا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، تو میں پاکستان ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس لحاظ سے، اور آئندہ بھی کامیابی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو مجھے امید تھی کہ پاکستانی ٹیم اپنی پرفارمنس دکھائے گی، انہوں نے اس چیز کو بہتر کیا ہے اور آئندہ بھی نیکسٹ ٹائم وہ اس چیز کو بہتر کریں گے۔ پاکستان نے سیریز ون کی ہے اور اب پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہے اور وہ بھی پاکستان انشاءاللہ جیتے گا۔ پاکستان کی ٹیم نے جو ہے وہ 22 سال بعد جو ہے وہ آسٹریلیا سے کامیابی حاصل کی ہے کرکٹ میں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستانی کرکٹ میں مسلسل ہارنے کے بعد جو ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ موٹر وے پر اسموگ اور دھند کا راج ہے۔ M4 پنڈی بھٹیاں سے عبداللہ حکیم تک بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے نے شہریوں کو سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، موٹر وے پر اسموگ اور دھند کا راج برقرار ہے، تاہم M4 پنڈی بھٹیاں سے عبداللہ حکیم تک روڈ بند کر دی گئی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ زہریلی اسموگ ڈویژن بھر پر غالب آ گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 247 پر پہنچ گیا۔ جھنگ میں فضائی آلودگی کی شرح 217 اور ٹوبہ میں 212 ریکارڈ۔ چنیوٹ کا AQI 214 ہو گیا۔ شہری ماسک پہننے سے گریزاں۔ متعلقہ ادارے SOPs پر عمل درآمد کروانے کے بجائے خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف۔ جھنگ شہر بدستور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، اسموگ کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی۔ شہری گلے اور آنکھوں کے انفیکشن میں مبتلا۔ شور کوٹ میں اسموگ کا روگ کم نہ ہو سکا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 212 تک پہنچ گیا۔ طبی ماہرین کی ہدایات اور حکومت کی بار بار درخواستوں کے باوجود شہریوں نے ماسک کی پابندی کو ہوا میں اڑا دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ ماسک مہنگے فروخت ہو رہے ہیں، کیسے خریدیں؟ مگر میں ذرا جلدی میں تھا اس لیے میں آ گیا۔ یہ تو روزانہ ہی اسموک ہوتی ہے اور ہر سال ہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک ہی ہے جو اپنی رحمت دے، اور رحمت بارش ہو جائے رحمت کی تو یہ اسموک ختم ہو تب بھی جان چھوٹے گی، نہیں تو غریب آدمی ہر روز 10-15 روپے کا ماسک کہاں سے لگائے گا؟ اسموگ کی دن بدن بگڑتی صورتحال پر محکمہ ماحولیات متحرک۔ فیصل آباد سمیت دیگر اضلاع میں اسموگ سے نمٹنے کے لیے ایئر پیوریفائرز لگانے کے فیصلہ DG ماحولیات عمران حامد شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تمام شاپنگ مالز کو ایئر پیوریفائرز لگائے جائیں گے۔ کمرشل پلازوں میں بھی ایئر پیوریفائرز لگیں گے۔ شاپنگ مالز اور کمرشل پلازوں میں گاہکوں کے لیے صاف ہوا کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ اسموگ پر کنٹرول کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی متحرک۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف حتمی کارروائی کا فیصلہ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے پرائیویٹ اور سرکاری گاڑیوں کو 7 یوم کا الٹیمیٹم دے دیا۔ ٹرانسپورٹ کہتے ہیں کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے بھاری چالان ہوں گے۔ انسانی زندگی کے خطرناک گاڑیوں کو سڑکوں پر مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو بتاتے ہیں کمالیہ جکھڑ میں میلہ دیکھنے آئی خاتون سے 3 افراد کی اجتماعی زیادتی، مقدمہ درج۔ تھانہ بھسی پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، ایک ملزم فرار۔ FIR کے مطابق میلہ جکھڑ میں دکاندار نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مزید جانتے ہیں رضوان خان سے۔ رضوان، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، کمالیہ کا یہ نواحی علاقہ ہے جکھڑ، جہاں پر 3 روز سے میلہ لگایا گیا ہے۔ میلہ دیکھنے آئی خاتون سے 3 افراد کی اجتماعی طور پر زیادتی کا یہ واقعہ سامنے آیا، جس پر تھانہ بھسی پولیس نے مقدمہ درج کرتے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایک ملزم جو ہے وہ فرار ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ میلہ جکھڑ میں دکاندار نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، جو کہ کمالیہ کا نواحی علاقہ جکھڑ میں میلہ دیکھنے آئی تھی، جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور اس نے 2 ملزم جو ہے گرفتار کر لیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، کیا قیمتیں چل رہی ہیں، رپورٹ دیکھیے۔
प्याज की कीमत रेट लिस्ट पर 130 रुपए से बढ़कर 140, मार्केट में अभी तक 170 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा। टमाटर रेट लिस्ट पर 90 रुपए फी किलो हो चुका, जबकि मार्केट में 140 रुपए फी किलो। लहसुन चाइना 590 रुपए फी किलो से बढ़कर 630 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। बाजार में कीमत 700 से जायद हो गई। अरवी की कीमत गुज़श्ता हफ्ते 135 रुपए फी किलो थे, जो आज 140 रुपए फी किलो हो चुकी। मटर की कीमत 245 रुपए से बढ़कर 325 रुपए फी किलो, मार्केट में 450 रुपए फी किलो पहुंच गई। शिमला मिर्च रेट लिस्ट पर 410 रुपए फी किलो की बजाय 500 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में 600 रुपए फी किलो फरोख्त। करेले की कीमत 125 रुपए से बढ़कर 140 रुपए फी किलो, मार्केट में 200 रुपए फी किलो दस्तयाब है। हुकूमत रेट लिस्टों पर आमद दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। सब्जी तो बहुत महंगी है जी, ये इस हफ्ते में ना बहुत महंगी हुई है। हम क्या कह सकते हैं, पर यही है कि बस जो रेट हैं वो थोड़ा मुनासिब हो। सब्जी लेने से अब बंदा चिकन ले रहे हैं। पहले से सब्जी बहुत महंगी हो चुकी है। पहले गोश्त महंगा था, अभी सब्जी महंगी है, तो गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, ना बच्चों का पेट पाल सकता है। सब्जी की कीमत देख लो, आसमान पे चढ़ गई है। आए रोज कीमतें बढ़ने से सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो रही हैं। शहरियों का कहना था कि सब्जियों की कीमत में इजाफा तशवीशनाक अमर है। सब्जियां भी गोश्त के भाव खरीदनी पड़ रही हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि आए रोज सब्जियों की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। हुकूमत मार्केट कमेटी की रेट लिस्टों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कैमरामैन शज़ेब अली के साथ उमर रांझा, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब LPG के नखरे निर्ख 300 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। अहमदपुर सियाल में मौसम सर्द होते ही महंगी LPG ने गरीब सार्फिन के चूल्हे भी ठंडे कर दिए। LPG 300 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दुकानदारों ने 260 रुपए फी किलो सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिया। शहरियों का कहना था कि 300 रुपए फी किलोग्राम में गैस खरीदने की इस्तात नहीं रखते। मेरा मुतालबा ये है जो गैस का रेट है ना वो 300 रुपये किलो से कम होना चाहिए। तो हर शहरी जो है ना पाकिस्तानी बंदा, हर बंदा इसका फ़ायदा उठा सके, तो हमारी गुजारिश है तो 300 जो गैस का रेट है ना इससे कम होना चाहिए। दुकानदार कहते हैं कि मौसम सरमा में LPG के दाम आसमान को छूने लगते हैं। प्लांट वाले महंगी गैस देते हैं, इसलिए महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं। हमें पीछे से महंगी मिल रही है और हम भी महंगी दे रहे हैं। बाकी इसका कंट्रोल करना रेट का इदारों का काम है। जो गैस माफिया है उन पे वो जो थोक जिनके प्लांट है उन पे वो उनको रिक्वेस्ट करें कि रेट ना बढ़ाया करें, ना बढ़ा किया करें। शहरियों ने पुरजोर मुतालबा किया है कि LPG की कीमतों में फौरी तौर पर कमी अमल में लाई जाए। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41, अहमदपुर से। और आपको बताएं कि फैसलाबाद इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई तो की मगर बराए नाम ही रही। कमिश्नर फैसलाबाद का बाजारों को जीरो इंक्रोचमेंट बनाने का दावा हवा में उड़ गया। कचहरी बाजार में तजावुजात चूंकि तू शहरी भी फट पड़े। बोले जान हथेली पर रखकर फुटपाथों के बजाय सड़कों पर चलना पड़ता है। इंतजामिया तजावुजात माफिया को कंट्रोल करे। यहाँ पे मसला ये होता है कि जब यहाँ से चल के जाते हैं तो बीच में मोटरसाइकिल्स, कार्स और ये सब कुछ बीच में आते हैं, तो हम लोग जो है क्रैश कर जाते हैं, कपड़े भी खराब होते हैं इस तरह से। तो हमारे पास फुटपाथ नहीं है चलने के लिए इधर प्रॉपर्ली। अगेन आई वुड लाइक टू से कि इतनी बड़ी मार्केट है, मार्केट बहुत अच्छी है, बट द थिंग इज यहाँ पे चलने की सही से जगह नहीं है किसी के लिए। इंतजामिया जो भी है आप लोगों का, इसको थोड़ा इसके ऊपर गौर करना। खबर टेक्सिंग में शोरकोट रोड तजावुजात से सुकड़ गया। दुकानों के आगे इजाफी फटे, रेडियां और रिक्शे लग गए। ट्रैफिक जाम, हादसात मामूल बन गए। शहरियों को रोड को तजावुजात से साफ करवाने का मुतालिबा। चनियोट म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान की अदम दिलचस्पी। अंदरूने बाजार मेन शाहराहें तजावुजात की लपेट में। पैदल चलने वाले राहगीर शदीद मुश्किलात से दो चार। दुकानदारों ने फुटपाथों को मलकियत समझकर रेडी बांध को किराए पर दे दिए। शहरी परेशान, अरबाब इख्तियार से कार्रवाई का मुतालिबा। शहरों में मुख्तलिफ जगह पे रोडों पे लोगों ने फोटोस्टेट की मशीनें बाहर रखी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं और दीगर सामान रखा हुआ है, जिसकी वजह से गुजरना बिल्कुल ही मुश्किल हुआ पड़ा है। और फुटपाथ छोड़कर रोड पर चलें तो रोड पर हादसात होते रहे, आए रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। शहरियों ने कहा तजावुजात से शहरों का हुस्न भी मानित पड़ गया। माफिया को मुस्तकिल नुकेल डाली जाए। और आपको बताएं कि फैसलाबादी सस्ती तफरी से महरूम हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
जंग की म्यूनिसिपल कमेटी शहर के सीवरेज मसाइल हल करने में नाकाम। मोहल्ला हुसैनाबाद में खड़े सीवरेज के पानी ने मकीनों के लिए गुजरना मुहाल कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी कुछ नहीं कर रही। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने की अपील। सब पानी की वजह से लोगों को बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं, घरों में ये वो सारा कुछ, गलियों में भी मुसीबत हो रही है ये वाली। और मेन मसला ये है, यहाँ से जनाजा गुजरता है, जनाजे गाह तक ये रोड बड़ा मसला मसाइल ये सीवरेज की वजह से हो रहा है। फैसलाबाद पीएचए की नाअहली के बाद पार्कों की हालत अब तक। क्रिसेंट ग्राउंड में झूले सलामत रहे, ना ही एक्सरसाइज के लिए मैनुअल मशीनें, सफाई के भी नाकुस इंतजाम। शहरी मुश्किलात से दो चार। शहरियों का इंतजामिया से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। और हुकूमत ने सड़कों के लिए करोड़ों का फंड जारी कर दिया है। टोबा टेक्सिंग का मुस्तफाबाद रोड शहरियों के लिए अजियत बन गया और सदरात से टूट फूट का शिकार। रोड गाड़ियों का दुश्मन बन गया, हादसात मामूल बन गए। मुस्तफाबाद रोड पर बेशतर निजी स्कूल और डिप्टी कमिश्नर हाउस भी मौजूद, फिर भी नजरअंदाज। शहरी फट पड़े, मट्टी और धूल से सांस लेना दुश्वार हो गया। सर जी सीवरेज लाइन डलने की वजह नाल ना साथ स्कूल आ 3-4 ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਤਮਾਸ ਆ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ दूर होवे। शहरियों ने मुतालबा किया इंतजामिया मुस्तफाबाद रोड की तमीर और मरम्मत के लिए इकदाम उठाए ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। हुकूमत की किसानों पर नवाजिशात जारी हैं। किसान कार्ड के बाद लाइव स्टॉक कार्ड का भी इजरा कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानब से जारी करदा इलामिये के मुताबिक किसानों को 5 माह तक रकम वापस करना होगी। कार्ड मिलने पर किसान भी खुशी से निहाल, इकदामात को खुशाइंद करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ा का कहना था कि अब किसानों की बेशतर शिकायत खत्म हो गई हैं, ताहम अभी तक डीजल के हवाले से कोई लाहे अमल तश्कील नहीं दिया जा सका। डायरेक्टर ज़राअत तोसी की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत को भी इसी कार्ड में शामिल करने की यकीन दहानी, ताहम अभी तक इस सिलसिले में मजीद कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। और आपको बताएं कि क्रशिंग सीजन का 21 नवंबर से आगाज कर दिया जाएगा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की जानिब से शुगर मिलों को हिदायत जारी की गई कि क्रशिंग सीजन का आगाज 21 नवंबर को करें। ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुस्ती बरतने वाले मिल्स मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। शुगर एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस भी मुअत्तल किया जा सकता है। किसानों ने इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए कहा, क्रशिंग सीजन का बर वक्त शुरू करने पर हम शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मशकूर हैं। किसान नवंबर के आखिर में कमाद के बाद गंदम की फसल काश्त करने के काबिल हो सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के जरिए तमाम एफबीआर की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इसके टैक्स वसूलियों पर असरात के मौजू पर मकामी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुकामी होटल में सेमिनार एफबीआर की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और उसके असरात के मौजू पर मुनाकिद हुआ। सेमिनार में मेंबर एपलेट ट्रिब्यूनल MM अकरम, चीफ कमिश्नर एफबीआर फैसलाबाद राय इरशाद हुसैन, पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान टैक्स बार राना मुनीर हुसैन, सदर पाकिस्तान टैक्स बार अनवर काशिफ मुमताज, सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार रेहान सदीकी, पाकिस्तान टैक्स बार के नायब सदर शेख मोहम्मद यूसुफ और माहिर टैक्स उमूर मलिक बशीर अहमद ने शिरकत की। साबिक सदर पाकिस्तान टैक्स बार अब्दुल कादर मेमन, लाहौर टैक्स बार के सदर शहबाज सदीक ने भी शिरकत की। सेमिनार से खिताब में मुकर्रीन का कहना था, टैक्स सिस्टम को दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग करना इंतहाई जरूरी है और एफबीआर इस पर तेजी से अमल पैरा है। आज हम ये कोशिश करेंगे कि जितना एफबीआर ने डिजिटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा है तो उससे हमें जो नॉर्मल हमारी कंप्लायंसेस है उसमें क्या हमें प्रॉब्लम आ रही है। सेमिनार से खिताब में फैसलाबाद टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी इमरान मुनीर ने कहा, एफबीआर टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मरहलावार तमाम शोबाजात को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है। सेमिनार में सदर फैसलाबाद टैक्स बार मलिक शाहनवाज अकबर, नायब सदर चौधरी नाजम अली, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर नईम कासिम गिल, दीगर वकला, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रैक्टिशनर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि जंग सीनियर रिपोर्टर सिटी न्यूज नेटवर्क शाहिद सिप्रा के वालिद गरामी मरहूम मेहर हक नवाज सिप्रा की रूह के साले सवाब के लिए चहलम के सिलसिले में महफिल का इनेकाद
चक सिपरा 446 जीन बे में मुनक्किदा महफिल में शाहिद सिपरा समेत सौगवारान की कसीर तादाद में शिरकत। सीनियर रिपोर्टर सिटी न्यूज नेटवर्क शाहिद सिपरा के वालिद गिरामी मरहूम हक नवाज सिपरा की रूह के इसाल के लिए खत्म चेहलम की महफिल का इनाकात इनके आबाई चक सिपरा 446 जिम्बे में किया गया। नामवर सना खानों ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश किया और मारूफ आलम दीन ने बयान फरोश अहबाब और सोगवारान की कसीर तादाद महफिल में शरीक हुई। इलाके की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। मरहूम की मगफिरत के लिए दुआए खैर भी की गई। शाहिद सिपरा के वालिद के इंतकाल पर दूर दराज से आए मेहमानाने ग्रामी ने इजहारी अफसोस किया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। दारुल उलूम नूरिया रिजविया फैसलाबाद में सालाना हफ्ता तकरीबात का एख्तिताम हो गया। बज़्म नूर अदब दारुल उलूम नूरिया रिजविया फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम सालाना हफ्ता तकरीबात के तहत 18 तलबा में तकसीम इनामात के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दारुल उलूम के सरपरस्त सैयद हिमायत रसूल शाह और मोहतमिम सैयद शिफात रसूल शाह समेत शोबा तालीम से वाबस्ता शहर की अहम शख्सियात ने शिरकत की। तलबा में शील्ड्स, ट्रॉफीज और मुख्तलिफ इनामात तकसीम किए गए। इस मौका पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा ने अपनी कामयाबी को असातिज़ा की मेहनत का नतीजा करार दिया। मेरे असातिज़ा किराम की मेहनत है, उन्होंने जो हमें सिखाया था वही आकर हमने उसका मुजाहिरा किया है, वो बयान किया है और डाइस पर आकर बोला है। तो ये फ़कत हमारा नहीं है, हमारे असातिज़ा किराम की कोशिश है और उनकी मेहनत है। मैं निहायत ही मशकूर हूँ अपने असातिज़ा किराम और मुंतज़मीन का, जिन्हों की अनथक मेहनतों की वजह से आज मैंने बंदा नाचीज़ ने माशाअल्लाह 3 पोजीशंस ली हैं। तालीमी इदारों में हम निसाबी सरगर्मियों और इन मुकाबलाजात में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा की हौसला अफजाई एक मुस्बत और काबिल सताइश अम्र है। कैमरामैन जुनैद के साथ कामरान सईद, सिटी 41 फैसलाबाद।